Hello and welcome to Teacher Tycoon. Here I make videos on teaching and lifestyle. Today, being 10th April, we globally celebrate World Homeopathy Day. This day is celebrated to commemorate the birth anniversary of Dr. Friedrich, a German physician and the founder of homeopathy. 200 years ago, the German missionaries brought homeopathy to our land, India. India is also called the land of homeopaths as India serves more than 217,000 homeopath doctors. To explain more about homeopathy, I have invited Priyanka Latkar from Aurangabad, who is a homeopath doctor with more than 10 years of experience. She will give you a great insight about how homeopathic medicines work, what are the basic, what are some myths regarding it, and will share her immense and precious knowledge with us. I am thankful to Dr. Priyanka and hope that her knowledge that she shared will help each and everyone, help the audience. Start with the video. Hello everyone, I am Dr. Priyanka Latkar. I am practicing homeopathic consultant. I am practicing in the city Hyderabad from more than 10 years now. Now today, World Homeopathy Day, I am very happy and I am very proud being a homeopath. In homeopathy, it is really very the one core where every homeopath can resonate. That is, when you start practicing, it's a kind of lack of confidence and you're skeptical when you are treating a patient. But day by day, the excitement, the interest, the love towards homeopathy increases for every homeopath. You can go and ask anybody, but this is the core of any homeopathic practitioner. So I'm really proud, I'm very happy, and daily I get to see so many patients and I love to connect them. Now basics about homeopathy, I will tell you that you must have heard similia similibus curantur or this is like cures like, जिसमें हिंदी में हम बोलते हैं कि लोहे को लोहा तोड़ता है. तो जैसा मतलब प्रॉब्लम है उसी तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है होम्योपैथी में. ऐसा क्यों है? सो बेसिकली होम्योपैथी यही रूल पे काम करती है. दूसरा रूल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जो कि एकदम कम डोसेज, जहाँ पे हम लोग बहुत माइन्यूट लेवल पे मेडिसिन देते हैं. वी डोंट स्टार्ट विथ हार्श मेडिसिन वॉट एवर इज़ द कंप्लेंट. उल्टा कभी कभी कैलकुलेशन अलग होता है, कभी बहुत ज़्यादा सीरियस होता है कंप्लेंट्स, तो बहुत माइन्यूट मेडिसिन भी बहुत अच्छे से काम कर जाती हैं. सो लॉ ऑफ मिनिमम is the main core of homeopathic medicine. In homeopathy, what I tell usually about my when I am expressing how is my practice going. So मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर मेरे क्लिनिक में एसिडिटी के 10 पेशेंट्स हैं, ओके, बट जो हर वन बाय वन मेरे सामने जब आएंगे वो, तो आई विल नॉट बी गिविंग सेम मेडिसिन फॉर एवरीबडी like it happens in English or allopathic kind of treatment, कि जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मेडिसिन दिए जाएंगे. यहाँ पे क्या होता है, इन एसिडिटी केस वी विल नॉट सी ओनली द कंप्लेंट्स विच पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम, बट वी विल गेट इन टू द कोर. लाइक वी विल अंडरस्टैंड वॉट इज़ द पर्सन, मतलब ये इंसान कौन है जो सफ़र कर रहा है. सो वी ट्रीट पर्सन इन होम्योपैथी टू क्योर द कंप्लेंट्स. टू क्योर द कंप्लेंट्स मतलब जो 100% सूटेबल होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए, तो वो हम मेडिसिन देते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम वी चूज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द मेडिसिन. सो बेसिकली जब हम लोग वो मेडिसिन देते हैं, इट हेल्प्स दैट पेशेंट्स इम्यूनिटी टू डेवलप फ्रॉम इनसाइड, और पेशेंट खुद ब खुद वो प्रॉब्लम से फाइट करके बाहर निकल के आता है. तो मेडिसिन तो एक ज़रिया है आपकी अंदर की ताकत को बढ़ाने का इन होम्योपैथी, in short. ठीक है, so this is the core of homeopathy. I hope that resonates with you and this is how it is. अब अगर मिथ जो होते हैं होम्योपैथी में, मतलब गलत फहमियाँ, तो ये तो बहुत कॉमन टॉपिक है, जहाँ पे हमें यूजुअली ये बोला जाता है कि होम्योपैथी सिर्फ क्रॉनिक केसेस में काम करती है और एक्यूट केसेस में नहीं काम करती है. बहुत बड़ा मिथ है. हम लोग एक्यूट केसेस भी बहुत अच्छे से और बहुत एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं. दे आर वंडरफुली इफेक्टिव
एंड दे कैन गेट टू सी रिजल्ट्स वेरी क्विकली ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आपको काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ता है, बट हाँ, सही मेडिसिन सही मात्रा में जाएगी तो ही वो असर करेगी। दूसरा मिथ होता है जहाँ पे हमें पूछा जाता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ बच्चों में दी जाती है और बड़ों में नहीं। तो ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है, क्योंकि बच्चे जिनका डेज़ मतलब फ्यू डेज़ के बच्चे से लेके बहुत बड़े बुज़ुर्गों तक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। बट येस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इन डेप्थ केस टेकिंग लेते हैं, जैसे आपका एज बढ़ेगा आपकी केस टेकिंग भी उतनी लंबी होगी, आपकी कंप्लेंट्स हम लोग विस्तार में जाके बात करेंगे और आपका जो प्रॉब्लम है, मतलब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो हम लोग ये ज़्यादातर ये सोचते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई होगी, आपकी नींद ठीक नहीं है, आपका खाना पीना ठीक नहीं है, आपको कोई स्ट्रेस है। बट इसके अलावा भी अगर मेंटली भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और वो किस वजह से है, तो वो वजह फाइंड की जाती है होम्योपैथी में, ताकि वो वजह को हम लोग पॉइंट आउट करके आपको ट्रीटमेंट दे सके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हर एक एज ग्रुप के लिए होम्योपैथी असरदार काम करती है। और एक चीज़ ये की जाती है कि होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ प्लासीबो होते हैं। प्लासीबो मतलब जहाँ पे हम लोग जो मेडिसिन देते हैं या फिर वो जो गोलियाँ रहती है उसमें कोई मेडिसिन ही नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है, मेडिसिन उसमें डाली जाती है। ये तो मतलब एक जैसे टैबलेट में कोई कंटेंट डाला जाता है, उसी प्रकार से होम्योपैथिक राउंड पिल्स में भी हम लोग मेडिसिन डालते हैं, क्योंकि वो डोज आपको हर बार रिपीट करना पड़ता है, ताकि अंदर की आपकी ताकत, जिसको हम वाइटल फोर्स बोलते हैं, जिसकी अंदरूनी शक्ति आपको बढ़ानी पड़ती है, तो आपको रिपीट करना पड़ता है वो दवाई। तो आपको इसी के लिए हम लोग दिए जाते हैं, क्योंकि हम इफ़ यू डोंट वांट दैट, हमारा लिक्विड फॉर्म में भी होता है दवाई, दैट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी टू कंज्यूम। सो आपको वैसा डॉक्टर को बोलना पड़ेगा कि मुझे लिक्विड फॉर्म में चाहिए, मुझे पिल्स फॉर्म में चाहिए। ओके, होम्योपैथी मेडिसिन काम कैसे करती है? अब होम्योपैथिक मेडिसिन काम कैसे करती है, मतलब आप जाएंगे होम्योपैथिक कंसल्टेंट के पास, आपकी विस्तार में प्रॉब्लम पूछी जाएगी। तो हमारे पास जो भी मेडिसिन्स होते हैं, वो मेडिसिन्स अगर आपके जो प्रेजेंट कंप्लेंट्स हैं, आपका मेंटल मेकअप जो है, आपकी इमोशनल स्टेट है, आपके डाइट प्रेफरेंसेस है, आपकी नींद कैसी है, आपके कोई स्पेसिफिक सपने हैं क्या, ये सारा चीज़ जब एनालिसिस करके दिया जाता है और आपकी स्टेज, प्रॉब्लम की स्टेज जो है, उस स्टेज के हिसाब से मेडिसिन का स्ट्रेंथ तय होता है, वैसे आपको मेडिसिन दिया जाता है। तो एग्जैक्ट जब मेडिसिन आपको मिलता है जो आपकी प्रेजेंट स्टेट को सूट करता है, तो वो अंदर की जो आपकी स्ट्रेंथ होती है हीलिंग की, उसको जगाता है। उसको जब जग जाती है, तो आप अपने आप के प्रॉब्लम को आप खुद ही डील कर सकते हो। यू कैन डील विद दैट प्रॉब्लम ऑन योर ओन। मेडिसिन एक ज़रिया है टू light that fire inside you so that you can heal yourself on your own. So इसी प्रकार से होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है। अगर आपको ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, आई विल बी रियली हैप्पी टू आंसर यू। देखिए, जब बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं, जब वो होम्योपैथी लेना शुरू करते हैं, देन उनको लगता है कि हर चीज़ होम्योपैथी में ही मिल जाए। तो अगर डेफिशिएंसीज़ वगैरह होती है, जैसे कि B12 है, D है, या फिर कोई भी चीज़ जैसे आयरन डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो वो पूछते हैं कि होम्योपैथी में ऐसा कुछ है क्या। बट टू बी वेरी फ्रैंक, सप्लीमेंट्स ऐसा मतलब मैं तो नहीं सजेस्ट करती हूँ। होते हैं, जैसे कैल्शियम होता है, आयरन के सप्लीमेंट्स होते हैं, बट अगर वो बहुत ज़्यादा लो है तो it is not advisable. So you should ideally go and take the injections or the allopathic medicines which are available in the pharmacy store. क्योंकि अगर आपका हीमोग्लोबिन फॉर एग्जांपल 9 के नीचे है और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन टेकिंग द होम्योपैथिक सप्लीमेंट्स। तो जब जैसा है वैसा ही एडवाइस करना पड़ता है, चाहे वो मतलब एज अ एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो या होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो। जो पेशेंट को ज़रूरी होता है वो ही हम लोग एडवाइस करते हैं। जब होम्योपैथिक केस टेकिंग हम लोग फेस टू फेस लेना चालू करते हैं, तो हमें एक प्रकार की आदत हो जाती है, वी गेट
used to it, seeing patient, talking to them and then discussing their journey, understanding them as a person. बट जब कोविड आया था, जब पैंडमिक हिट हुआ था, तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो बेसिकली आई वॉज नॉट रेडी टू स्टार्ट माई ऑनलाइन जर्नी, क्योंकि ऐसे लगता था कि यार नहीं, आज नहीं तो कल, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने शुरू हो जाएगा. बट इट वॉज़ नेवर एंडिंग. सो आई स्टार्टेड, मतलब मुझे पेशेंट्स ने ही सजेस्ट किया था कि आप मैम ऑनलाइन में आ जाइए, ऑनलाइन में बहुत स्कोप है और आजकल सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है, सो व्हाई डोंट यू गिव अ शॉट. So then I started being on Instagram, then I started on the journey on Facebook, then I started my website. So जब मैंने शुरू किया था, and then online अब इतना comfortable हो गया है that it is comfortable for us, it is comfortable for patients also, and then medicines तो आपको डोर तक आ जाती है, आपको कोरियर तक आ जाती है, and then because आपके पास WhatsApp होता है, आप हमें कभी भी मैसेज कर सकते हैं, then I am ready to answer. So ऐसा नहीं कि टाइम देखा जाएगा कि हाँ ये टाइम को मैं करूँ, पूछूँ नहीं पूछूँ. तो मैं हमेशा पेशेंट को बोलती हूँ कि आपको जब भी कोई डाउट आए, आप इमीडिएटली मुझे मैसेज कर दिया करो, ताकि आप भूलें ना. और मैं भी मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से आई सेंड देम अ वॉइस नोट. आई एम वेरी कंफर्टेबल इन सेंडिंग वॉइस नोट. तो आपको अच्छा भी लगेगा, तब वो टाइम कोई भी हो, आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर भी मिलेगा, एंड देन आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा कि अच्छा ये नेक्स्ट विजिट में मुझे पूछना है. नहीं, आप तब का तभी पूछ लीजिए, एंड आई एम देयर टू हेल्प यू. सो अब जाके ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन विल हैव अ रियली वेरी गुड टाइम coming future, and I'm really happy doing that. I'm very comfortable now. मुझे एक केस शेयर करना है जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरे, मतलब एक नहीं, ऐसे बहुत सारे. बट बेसिकली जब पेशेंट्स नहीं रेडी होते हैं होम्योपैथी लेने के लिए, एंड दे वेरी स्केप्टिकल, जस्ट बिकॉज उनको किसी ने बोला होता है कि नहीं आपको होम्योपैथी लेना है, एंड देन आप ट्राई करते हो, तो यू आर वेरी स्केप्टिकल. सो आप बहुत बार आपको पेशेंट बोलता है कि नहीं मैम, आई एम टेकिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम नॉट श्योर हाउ दिस इज़ गोइंग टू गिव मी द रिज़ल्ट. सो ये पेशेंट PCOD की ही थी, एंड शी वॉज़ वेरी स्केप्टिकल. शी थॉट कि ओके मेरा होगा नहीं होगा. सो शी वॉज नॉट रेडी टू इवन गिव मी मनी. तो आई सेड इट्स ओके, डोंट थिंक अबाउट दैट, जस्ट टेक द ट्रीटमेंट राइट नाउ. इफ यू satisfied, then you let me know. If you have any doubt, I am there to help you out. एंड ट्रस्ट मी, जैसे ही उन्होंने मेडिसिन स्टार्ट की, शी स्टार्टेड फीलिंग गुड. उनका एपेटाइट वापस आ गया, उनकी नींद अच्छी होने लगी, उनको अच्छा लगने लगा था, क्योंकि कभी वही PCOD के केसेस में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं. सो वो अप एंड डाउन जो मूड होता है ना, सो उसकी वजह से पेशेंट्स आर ऑलवेज इरिटेटेड एंड दे आर ऑलवेज स्केप्टिकल, अरे मेरी बॉडी में क्या हो रहा है. सो उनका ये सब बैलेंस आउट होने लगा, एंड देन शी मैसेज्ड मी. आई वॉज सो स्केप्टिकल मैम, आई एम वेरी थैंकफुल. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. अब जाके मैं होम्योपैथी कभी भी रोकने नहीं वाली हूँ. आई एम सो हैप्पी. आई स्टार्टेड माई पीरियड्स, आई स्टार्टेड गेटिंग माई रेगुलर पीरियड्स, एंड आई एम फीलिंग ऑल्सो गुड. सो आई नो दिस इज़ गोइंग टू क्योर माई प्रॉब्लम्स. दिस वॉज वेरी हैप्पी. एंड ये ऑनलाइन पेशेंट ही था, ऐसा नहीं कि मैंने उनसे बात की थी डायरेक्ट. शी इज़ फ्रॉम outskirts of Hyderabad, and I'm very glad to know that. I even expressed that one. So ऐसा होता है, बहुत पेशेंट्स ऐसे हैं, स्किन की कंप्लेंट्स वाले पेशेंट स्पेशली, उनको क्योंकि बहुत एलोपैथिक मेडिसिन ले चुके होते हैं, बहुत सारे क्रीम्स अप्लाई कर चुके होते हैं. सो जब वो देखते हैं कि नहीं हो रहा है, सो दे फील वेरी गुड. सो वो जब खुश होते हैं तो हम भी खुश होते हैं, बिकॉज दैट इज़ द जॉब दैट वी डू. Yes, I am very thankful. I am very happy. I am glad and very grateful to Alia, who gave me this opportunity to express my opinions, my experiences, my somewhat knowledge with you. And I'm very glad that on a homeopathic day I got this opportunity. I am very thankful. और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कनेक्ट कर दीजिए. आपको मेरे डिटेल्स सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे. सो आप फील फ्री करके देखिए. अब मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी लिखा होगा. आपको अगर कंसल्ट करना है तो उसके भी डिटेल्स होंगे नीचे. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. थैंक यू सो मच. टेक केयर and stay healthy.